Good morning, children. I hope you have completed lesson number 1, subject and predicate, in your copy. So here I am going to start lesson number 2. The name of the chapter is pronouns. I know that you have heard this name before also, pronouns. What is a pronoun? A pronoun is a word that is used in place of a noun. Everyone knows it, isn't it? Pronoun एक word होता है जो कि अपन noun की जगह पे use करते हैं. Everyone knows what is noun. Noun क्या होता है? Name of anything. Generally in a normal sense we used to say it as a name of anything is known as nouns, and when we are using any other word in place of these nouns, it is known as pronoun. So here, as you are in class 8 children, I think you know many of the pronouns. So I think you can fill these pronouns here. The fill in the blanks is given there, and you have to fill the proper pronouns, the correct pronouns here. Dash does your projects for dash question mark, isn't it? It is a interrogative sentence, so you have to fill the interrogative pronouns here. So I think you can do this as a homework. Let's come to the main topic, that is, here we will read about the different kinds of pronouns. Here we will read about in this chapter about different kinds of pronouns. Let's see how many pronouns you have already learned, and here some more pronouns we are going to read it. Kinds of pronouns. See how many kinds of pronouns are there, children. Pronouns are of 9 kinds. Pronouns are of 9 kinds. These are personal pronoun, demonstrative pronouns, possessive pronouns, indefinite pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, reciprocal pronouns, emphatic pronouns, and the relative pronouns. Now here we will see all these pronouns in details, exactly what these pronouns are and how can we use it, where can we use it, how we will know where to use all these pronouns. So first of all we will go through the personal pronouns. Now see here, this is the chart given for the personal pronoun. Personal pronouns means whenever we are using the pronouns in place of the person, when we are using pronouns in place of the person, we used to call it as a personal pronoun. For example, the first person as a subject we can use. For singular subject we will use I, for plural we will use we, and as a object for I we will use me, and as a object for we subject we will use us. Just like this, just go through your book, you can see there this chart given. Now let's come here for the uses of it. As we have seen, these are the pronouns I, we, you, he, she, it, they. ठीक है, all these are pronouns. Me, you, him, her, it, us, you and them. All these are pronouns. But here we know where to use I. जब आपको अपने लिए, खुद के लिए बात करनी होगी तब आप I का यूज़ करोगे. जब आपको हमारे लिए बात करनी होगी, means when there are some people, more than one people, then we will use we as a subject, isn't it? You, जब भी हमको तुमसे बात, मतलब तुम्हारे लिए, हमारे सामने जब कोई पर्सन होगा और उसके लिए अगर मेरे को बात करना है तो मैं उसके लिए यू सब्जेक्ट का यूज़ करूँगी. ही, जब कोई थर्ड पर्सन की बात हो रही होगी, मीन्स जब दो पर्सन आमने सामने बात कर रहे हैं लेकिन जिस पर्सन के बारे में वो बात करे वो पर्सन उनके सामने ना होके कहीं और है, तो उसके लिए अपन अगर मेल है तो ही यूज़ करेंगे और फीमेल है तो शी यूज़ करेंगे. दे के लिए जब कोई पर्सन दूर होता है, हमारे पास में नहीं होता और प्लूरल में होता है, ही और शी क्या होते हैं, सिंगुलर में होते हैं, और दे जो है वो प्लूरल में होते हैं. बट व्हाट अबाउट इट, इन सब का तो यूज़ हमको पता है, लेकिन इट के बहुत सारे यूजेस हैं, दैट वी विल सी हियर. सी यूजेस ऑफ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन इज वेयर कैन यू यूज द वर्ड इट, प्रोनाउन इट. इट इज़ यूज फॉर अ थिंग और एनिमल. जनरली हमको क्या पता है कि इट को अपन एनिमल और थिंग के लिए यूज़ करते हैं. क्या इट को अपन किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं? जनरली इट इज़ माई फ्रेंड ऐसा बोलते हैं क्या? नो, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, जस्ट लाइक वी यूज टू से. लेकिन इट का यूज़ अपन कहाँ करते हैं? फॉर एनी थिंग और फॉर एनी एनिमल. फॉर एग्जाम्पल, आई रेड द बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बुक इज़ अ थिंग, so I read the book, it is very interesting. I read the book, he is very interesting अपन बोल सकते हैं क्या?
नहीं बोल सकते हैं ना, इट विल बी रॉन्ग बिकॉज ही इज यूज्ड फॉर द persons, human beings. So the next example is the cow is an animal, it gives us milk. So for animal again we are using it. Now see the next condition given for the uses of it. For a small child, for example, अगर हम किसी छोटे बच्चे के बारे में कहीं बात कर रहे हो, जैसा कि अपन को पता है अपन लोग जनरली ह्यूमन बींग्स के लिए इट का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई छोटे बच्चे इन्फेंट बेबी की अगर हम बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे अपन इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो द बेबी इज़ क्राइंग, लिफ्ट इट, ठीक है। द बेबी इज़ क्राइंग, लिफ्ट हर और लिफ्ट हिम अपन नहीं बोलेंगे। अगर कोई इन्फेंट है, कोई छोटा बच्चा है, तो उसके लिए अपन इट का यूज़ करते हैं। फॉर पीपल इन अ फ्यू केसेस, फॉर एग्जाम्पल कुछ जगहों पे लोगों के लिए भी, ठीक है, जैसे कि हम लोग लोगों के लिए क्या यूज़ करते हैं, आई, वी, ही, शी, यू, ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस है जहाँ पे अपन पीपल के लिए भी इट का यूज़ करते हैं। हु इज़ इट ऑन द लाइन, ठीक है। यहाँ पे मेरे को नहीं पता है कि वो ही है, शी है, हिम है, हर है, कौन है। सो व्हाट आई विल यूज़ इट हियर। इट्स मी सुरेश, ठीक है, तो ये मैं हूँ सुरेश। तो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, अननोन, ठीक है। यहाँ पे भी सुरेश को सामने वाला आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए सुरेश क्या बता रहा है, इट्स मी, ठीक है। अब वो तो नहीं बोल सकता ही इज़ मी सुरेश, ऐसा बोल सकता है क्या? आप लोगों ने सुना है? नहीं सुने, इजंट इट? इज इट सुरेश ओवर देयर? नो, इट्स मोहन। तो अगर मैं यहाँ से पूछूंगी, मैं सुरेश को कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, सो मैं इस साइड से पूछूंगी इज इट सुरेश ओवर देयर, क्या वहाँ पे सुरेश है, ठीक है। नो, इट्स मोहन। तो जब भी कोई चीज़ अनआइडेंटिफाइड रहेगी, बहुत रेयर केसेस में, वहाँ पे अपन पीपल के लिए भी इट का यूज़ करेंगे। टू एक्सप्रेस टाइम, डिस्टेंस, वेदर एट्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर वी हैव टू एक्सप्रेस द टाइम, द डिस्टेंस, द वेदर, ठीक है, इन चीज़ों के लिए और भी इनके अलावा जो चीज़ें होंगी उनके लिए अभी अपन इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। रिमेंबर ऑल दीज कंडीशंस चिल्ड्रन, गो थ्रू द कंडीशंस वेरी वेल, ठीक है। ये नहीं कि आज पढ़ ली और कल भूल गए, इनका यूज़ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंसेस को करेक्ट करने में यूज़ होगा। सो रिमेंबर इट वेरी वेल, यू हैव टू गो थ्रू इट एट योर होम ऑल्सो आफ्टर द क्लासेस, just go through your book very well. Now see, to express the time, distance and weather, it's 5 o'clock by my watch, it's cold today, it's 500 kilometers. So here we are talking about the weather, here I am talking about the time, and here I am talking about the distance. It's the 4th of July, here we are talking about the day of the month. How far is it to Lucknow, here we are talking about the distance. It takes 5 hours to reach Jaipur, here also I am talking about the distance. So what I have used here as a subject it, the pronoun it I have used here as a subject, not he, she, it, they or something else. Now the next condition given is to introduce sentences. जब आपको सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करना हो, मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर की मतलब आपको नहीं पता है और वहाँ पे आप जब कोई चीज़ बताते हो तो वहाँ पे आप इट का यूज़ करते हो। इट्स आई हु हेल्प्ड यू, ये मैं हूँ जिसने तुम्हारी मदद की है, ठीक है। अभी तक उसको नहीं पता था। अगेन फॉर पर्सन, अगेन वी आर यूजिंग इट, बट when we have to use it for the person when the person is unknown to anyone, unknown to me, unknown to you, or unknown to someone else, there we will use it's the train that were late, it's in the morning that she is coming. Again here we are talking about the time, here we are talking about something, that's why we are using it here. Or else here we are not talking about any of the subject, here we are not talking about any of the subject, so to introduce any sentence we can use it. The next condition given is to represent something already mentioned. For example, आप अगर कोई चीज़ ऑलरेडी मैंशन है एज अ सब्जेक्ट, कोई चीज़ ऑलरेडी मैंशन है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम एंड आई लाइक इट,
वो हमेशा टाइम पे होता है और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। तो उसको क्या पसंद थी चिल्ड्रन? उसका ऑन टाइम होना। एंड फॉर टाइम एज वी हैव सीन हियर, फॉर टाइम वी ऑलवेज यूज इट्स। ठीक है, नाउ सी द यूज ऑफ दे, देम एंड देयर। The pronouns they and them can be used with neither, either, no one, someone, anyone, everyone, like this. ठीक है, whenever we have to use the pronoun they, them or their, we can use it with neither, either, no one, someone, anyone or everyone. इन words के साथ अपन इनका use करेंगे। ठीक है, who has left their bag on the seat? Who has left their bag on the seat? The next, neither of them has completed their work. So with neither, everyone, no one, someone, anyone, like this, we will always use these types of pronouns according to their use. ठीक है, I can't use them here, I can't use their here, I can't use they here. So it depends on the sentence that which pronoun you have to use here. Now come to the demonstrative pronoun, children. What is demonstrative? The word that demonstrates something or the word that point out something is known as demonstrative pronouns. So this is my pen. My pen is here, but what I am demonstrating, I am pointing out. I am pointing out my thing that this is my pen. So किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव के प्रोनाउन के सिर्फ फॉर एग्जाम्पल्स होते हैं। व्हाट आर दे? दिस, दैट, दीज एंड दोज। सो एवरीवन नोज दिस इज यूज्ड फॉर जब कोई चीज़ सिंगुलर होती है और हमारे पास होती है तो अपन दिस का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ सिंगुलर होती है लेकिन हमसे दूर होती है तो अपन दैट का यूज़ करते हैं। व्हेन एनीथिंग इज प्लूरल इन नंबर्स, व्हेन एनीथिंग इज प्लूरल इन नंबर्स एंड दैट इज नियर अस, then we will use these. And anything that is plural in number but is very far away, not very far but away from us, so we will use those here. ठीक है, so these are the demonstrative pronoun जब भी किसी चीज़ को point out करना हो। For example, these are your books, ये तुम्हारे books हैं। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये जो books हैं ये तुम्हारे हैं। सो व्हाट आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग, व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट, दैट दीज बुक्स, ये वाली जो बुक्स है ये तुम्हारी है। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स चिल्ड्रन। द नेक्स्ट इज पजेसिव प्रोनाउंस एंड द पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, व्हाट आर पजेसिव, व्हाट इज पोजेशन चिल्ड्रन? पोजेशन मीन्स इफ एनीथिंग बिलोंग्स टू यू, इफ एनीथिंग बिलोंग्स टू यू, योर बिलोंगिंग्स आर नोन एज पोजेशन और पजेसिवनेस। ठीक है, जब कोई चीज़ आपकी होती है, एकदम आपकी, वो दूसरे की हो ही नहीं सकती। ठीक है, सो उसको अपन बोलते हैं पजेसिव या पजेशन या पजेसिवनेस। सो यहाँ पे अपन देखेंगे पजेसिव प्रोनाउंस एज वेल एज पजेसिव एडजेक्टिव्स। दे हेल्प टू शो पजेशन, जब कोई चीज़ आपकी हो। दिस इज माई हाउस, ठीक है, दिस इज माई हाउस तो क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। बट अगर मैं उसको चेंज कर देती हूँ, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन, तो ये क्या शो कर रहा है? पॉसेसिवनेस शो कर रहा है कि ये मेरा ही घर है, ये किसी और का नहीं हो सकता। दैट इज नोन एज पॉसेसिव प्रोनाउंस। दैट इज योर पेन, ये तुम्हारा ही पेन है। ठीक है, ये मेरा पेन नहीं है, दिस इज योर पेन, तो ये पॉसेसिवनेस शो कर रहा है कि ये उसी का है। दो शूज आर हर्स, दो शूज आर हर्स। ठीक है, तो ये जो हर्स हैं किसका? ये मेरे जूते नहीं है, तुम्हारे जूते नहीं है, ये उसके हैं। गॉट इट? दिस इज आवर हाउस, दिस इज एडजेक्टिव। व्हाई दिस इज एडजेक्टिव चिल्ड्रन? बिकॉज बिफोर द नाउन समथिंग इज द क्वालिटी ऑफ द नाउन इज गिवन हियर कि दिस इज आवर हाउस। नाउन के पहले उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी एबिलिटी बता रहा है, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव। नाउ see the interrogative pronouns. Everyone knows it, isn't it? What is interrogative? To interrogate something. And what is the meaning of interrogation? Asking the questions is called interrogate. ठीक है, और उसी से ये वर्ड बना है interrogative. So the pronouns who, what, which, whom
आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये सब क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं ये। ठीक है, सो ये जो प्रोनाउंस है ये यूज होते हैं क्वेश्चनिंग करने के लिए। ठीक है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, दिस इज माई प्रॉब्लम, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर प्रॉब्लम, हु कैन हेल्प यू, विच इज योर स्कूल बैग, whom कैन यू हेल्प। So children, I have explained up to the 4th point. Just go through the points very well. ठीक है, उनको एक बार और समझने की कोशिश करो, उसको और एक बार देखने की कोशिश करो. You will get the things very well. So from the next point, I will take your classes on the next video. Thank you.